جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں 20 رجب بہت سی روایات میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے. تو ہماری طرف سے اور ہمارے جو اسپانسر ہیں اس پروگرام کے کاروان حیدری، ان کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج کا جو ٹاپک ہے، ہماری ایک بہن نے ای میل کیا تھا کہ ساس بہو کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس حوالے سے بات کی جائے. تو کچھ ای میلز آنا بھی شروع ہو گئے ہیں، آپ کی لائیو کالز بھی انشاءاللہ ہم لیں گے. لیکن اس سارے پروسیس کا آغاز یا ساری بات چیت کا آغاز ہی ہم اپنے گھر سے ہی کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ہماری جو سسٹر عظمہ ہیں، ان کی ساس صاحبہ مسز زیدی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. جی پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ٹائم دیا اور اس موضوع پر، بہت ہی حساس موضوع پہ بات کرنے کو آپ نے یس کہا ہے. تو کیسی بہو ہے آپ کی عظمہ بیٹی؟ ماشاءاللہ بہو تو ہماری بہت اچھی ہے جی، بالکل بیٹیوں جیسی ہماری بہو ہے. اچھا، کیا اچھائیاں ہیں ان میں جو آپ کچھ بتا سکتی ہیں ہمیں؟ بہت اچھی ہے، بس زیادہ خاموش رہتی ہے؟ جی زیادہ خاموش رہتی ہے آپ کی بہو؟ نہیں بلکہ میں تو بہت بولتی ہوں، ہمارے ساتھ بولتی رہتی ہے. اچھا ہم دونوں بہت بولتے جولتے رہتے ہیں، بالکل ایک گھر کا ماں بیٹی کی طرح ماحول ہے ہمارے گھر کا. اللہ کا شکر ہے پروردگار کا، ماشاءاللہ بہت کھلے دل کی ہے، بہت اچھی ہے. اچھا، تو کبھی شکایت ہوتی ہے اگر آپ کی بہو سے تو آپ ہمارے بھائی یعنی علی بھائی کو کہتی ہیں یا ان سے ڈائریکٹ کہہ دیتی کہ عظمہ ایسے نہیں کرو؟ نہیں، میں کسی سے بھی نہیں کہتی، نہ میں عظمہ سے کہتی ہوں نہ میں بھائی سے، ان کو میں اپنے بیٹے سے کہتی ہوں. اچھا، نہیں اگر کوئی شکایت ہو گئی عظمہ سے؟ نہیں کوئی شکایت، کوئی شکایت ہی موقع ہی نہیں دیا اس نے کہ ہم شکایت کریں. اچھا، امی کبھی تو ہوتی ہوگی، ایسا تو نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں عظمہ آپ بھی کچھ اگر پوچھنا چاہیں؟ امی میں کہہ رہی ہوں کبھی تو ہوتی ہوگی، ایسا تو نہیں ہے، ظاہر انسان ہوں میں بھی. اب چھوٹی موٹی تو گھر میں ہوتی رہتی ہے، چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے. یہ تو گھر میں جب اماں بیٹی ہے ہماری، ہم تو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اس کو، اور بیٹی ہے اور رہے گی ہمیشہ. ماشاءاللہ. ہم نے کبھی بہو تصور نہیں کیا، بالکل، کیونکہ میری خود کی بھی 2 بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ. اس لیے یہ میری تیسری بیٹی ہے. واہ واہ واہ، اللہ نظر نہ لگے. تو آپ ماشاءاللہ اب آئی ہیں، اب یہ خود ماشاءاللہ اب ماں ہیں، آپ ان کی بیٹی کی بھی خود ماشاءاللہ دادی ہیں. تو کیسا لگ رہا ہے، ان میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اور ماں بننے کے بعد ایک کیا تبدیلی آ جاتی ہے؟ وہ بہو پہلے والی بہو رہتی ہے یا اس میں کچھ پازیٹیو تبدیلیاں بھی آتی ہیں؟ ابھی تک تو ویسی ہے جیسی تھی، ویسے اچھی ابھی کی تو اچھی نئی بہو وہ اماں بنی ہے. ابھی تو ہم لوگ کو ان کو سکھانا پڑے گا، ایسے بنتا ہے، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. یہ تو ہے لازمیت ہے. مامتا اس کی اپنی ہے، میری مامتا الگ ہے، اس کی مامتا الگ ہے. یہ ہے ماشاءاللہ اپنے اپنے حساب سے مامتا ہوتی ہے. بہت اچھی ہے ویسے، اللہ کا شکر ہے پروردگار کا. تو اب تو میرے پاس کوئی سوال ہی نہیں بچا کہ کچھ آپ سے میں ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اور ہم یہ بھی چاہیں گے، دعا گو ہیں کہ آپ کا سلسلہ اسی طرح قائم و دائم رہے. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ جی. لوگ بس. تو اب یہاں پر یو کے میں آپ کو کوئی انہوں نے گھمایا پھرایا؟ آپ فرسٹ ٹائم بھی آئی ہیں؟ گھمایا پھرایا، شاپنگ کرائی، ہوٹلوں میں گئے، کھانے کھائے. ہم تو گھومتے ہی رہتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی امی سے ہماری بات ہو پائے، وہ بھی وہیں پہ مسز جعفری صاحبہ سے؟ جی بالکل. جی پلیز کرا دیں. وہ شکایت کریں گے. جی جی، آپ کا بہت شکریہ مسز زیدی. بہت شکریہ امی. اللہ حافظ. ہماری امی ہماری شکایت کریں گے. ہاں اصل بات تو یہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا. آپا مسز جعفری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، جو والدہ ہیں ماشاءاللہ ہماری سسٹر عظمہ کی. تو آپا آپ نے سن لیا جو ان کی ساس کے جو ریمارکس تھے، بہت پاسنگ مارکس ہیں. تو کیا تربیت آپ کی بہت اچھی ماشاءاللہ کہ آپ کی بیٹی اپنی ساس کے ساتھ اتنی اچھی زندگی گزار رہی ہیں، کوئی شکایت ہی نہیں ہے؟ کیا جو دیگر بہویں اس وقت دیکھ رہی ہے پروگرام، کیا کہیں گے ان کو کہ اپنی ساس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے جائیں بہتر؟ اپنی ساس کے ساتھ بالکل اپنی ماں جیسا سلوک کرنا چاہیے. جیسے آپ اپنی بیٹی کو سمجھتے ہیں اسی طرح آپ اپنی ساس کو بھی سمجھیں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہے نا، رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو ان کی ماں ہی کہتی کہ جہاں جانا ہے اب وہاں ان کی خبر لینی ہے. تو آپ نے کیا اس رخصتی کے وقت خاص بات بتائی تھی ہماری سسٹر کو؟ نہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے نصیحت کی جاتی ہے. جیسے آپ اپنے بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی اپنی
ससुराल वालों का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, चले बाहर में तो चले, ये तो तजर्बा माशाल्लाह, घर के तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जो लोगों की आप बात सुनते हैं कि सास बहू में आपस में कुछ लड़ाई हो गई, इसकी क्या वजूहात आप समझती हैं? उसमें कसूर ज्यादा बहू का होता है या सास का बहू का कसूर ज्यादा होता है? असल में कसूर सास का ज्यादा होता है, क्योंकि जो माएँ अपने बेटों को भड़काती हैं कि तुम ऐसा करो, वहाँ ये चीजें पैदा होती हैं। सही है। अगर वो ये ना कहें तो कभी भी घर में कोई झगड़ा नहीं पैदा हो सकता। अच्छी बात है। तो इस किस्म के ये जो भड़काऊ पॉलिसी है, ये सासू को चाहिए कि वो थोड़ा सा अमन व अमान के हवाले से आपको कंट्रोल करें और बिल्कुल शिकायत ना लगाएं। ठीक है। तो किस किस्म की शिकायत होती है आपा, कि ये शिकायत क्या मसलन? मतलब ये कि काम पे ही शिकायत होती है। अच्छा, काम नहीं किया आज, आपकी बीवी ने काम नहीं किया। आप खुद भी सास है माशाल्लाह, 3 बहुओं की सास है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अपनी बहुओं के साथ साथ लगी रहती हूँ। अच्छा जी। तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बहुत एक ऐसा आपने बताया कि आपकी बहू के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे। उनके साथ साथ लगी रहती हूँ, वो भी इंसान है, वो भी थक जाती हैं। अच्छी बात है। कभी हुक्म वगैरह ऐसा हुआ कि मैं तो बड़ी हूँ, या अब ये चाय बना के लाओ, या कोई ऐसा? तो करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हुक्म वगैरह नहीं करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, माशाल्लाह। चले आपा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपका बहुत शुक्रिया मिसेस जाफरी, मिसेस जैदी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और आपकी वजह से ये सिस्टर हमारे साथ हैं, प्रोग्राम कर रही है, आपने इनकी बेटी के पास है, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। आइडियल सिचुएशन और एक है कि पांचों के लिए बराबर नहीं, घर ऐसे चलते भी हैं, सास बहू का रिश्ता ताल्लुकात ऐसे होते हैं, तो जन्नत बन सकता है। फारूक भाई, मेरी अम्मी ने तो कुछ ऐसा नसीहत नहीं की, लेकिन मेरे बाबा ने जरूर मुझे नसीहत की थी। ठीक है। और वो नसीहत ये थी कि अगर शौहर का दिल जीतना है तो सास को मुट्ठी में रख लेना। अच्छी बात। बस अगर तुम्हारी सास तुम्हारी मुट्ठी में है तो तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है। बिल्कुल सही है। जैसे उन्होंने कहा कि माँ जैसा सलूक हो, और जैसे मिसेस जाफरी साहिबा ने कहा कि बाज़ औक़ात ये जो लड़ाई झगड़ों के आगाज़ होता है, ये सास की वजह से ज़्यादा होता है, भड़काना। और बाज़ जगहों पे बहुएं ये कहते हैं कि हाँ जी, सारा माल या सारी चाबियाँ या सारी दस्तरस साहब की तो अब माँ के पास है, मेरे पास अख्तियार ही नहीं है। तो बहू बहुत जल्दी कर देती है कि चले ठीक है, एक बुज़ुर्ग हैं, बड़ी हैं, उनके पास कुछ अख्तियारात, अब जैसे सदर ममनून जैसे तो अख्तियार होने ही चाहिए ना, कि सदर चले घर का बना दें, आप अपना काम खुद करते चलें, लेकिन इतना भी बाज़ औक़ात कबूल नहीं किया जाता बहुओं की तरफ से। तो ये दोनों अतराफ जो हैं। लीजिए, कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं आज के पहले कॉलर क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रफीक भाई। जी बहुत शुक्रिया। रफीक साहब हैं इंडिया से। सर आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे आपके प्रोग्राम आ रहे हैं। मेहरबानी। आज का तो टॉपिक भी बहुत अच्छा है। जी मैं याद कर रहा हूँ तुम्हारे भाई। जी लगातार, अगर आप इजाजत दें बिस्मिल्लाह, तो टॉपिक से अलग है। जी जरूर। लगातार जो टीवी आपका पाकिस्तान का, वो भी जो सर्वे कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जो न्यूज चैनल है, तो हमें कई बार उनको देखने में भी घबराहट की होती है कि जब भी चैनल के उसकी न्यूज के ऊपर हमारी नजर पड़ती तो ऐसा लगता है 2, 4, 10, 5, 20 लोग डेली पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद, सब जगह पर सही हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और उनमें जो अक्सरियत है वो अहले के जाने वालों की है। जी हाँ। कोई दिन भी ऐसा नागा नहीं जाता जब पाकिस्तान में सब लोग गलत का सिलसिला ही न चल रहा हो। सही और खुलेआम हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। समझ में नहीं आता किस तरह के इंसान हैं और क्या चाहते हैं ये लोग। रसूल का नाम भी लेते हैं, रसूल का कलमा पढ़ते हैं, और उन्हीं के हाल, उन्हीं की औलाद को ऊपर ये जुल्म सितम। बिल्कुल समझ से बाहर है। बिल्कुल सही बात है। और हर दुखी दिल ये सोच रहा है, उसके लिए बाउंड्रीज कोई ताल्लुक नहीं रखती, इसका वास्ता उनके नहीं है कि, लेकिन जो भी मुसलमान बहन भाई हैं, आप इसकी फिक्र करते हैं। रफीक साहब भाई, ईमेल हमें जो आई है उसमें यही पॉइंट आउट उन्होंने किया है, जो हमारी अम्मी ने भी किया, कि देखें जो सास, ये इसको उन्होंने कहा है कि ये डिस्कस करें कि क्यों माएँ जो है अपने बेटों को
भरती हैं, क्यों माएँ शिकायतें लगाती हैं। एक बात उन्होंने ये की, और दूसरी बात ये की है कि क्यों सासें बाहर वालों से डिस्कस करती हैं जो भी घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इन दो पॉइंट को जो है वो डिस्कस करें। यानी जब भी ये घर का मामला किसी तीसरे को, वो बहू से गिला, ये कि कोई बाहर से कोई खातून आई रिश्तेदार, बहू की जो गिला गुजारियां हैं वो खोल दिया कि ये तो उठती इतने बजे है, या इसने ऐसे कर दिया, इसको चाय तक नहीं बनाना आती, तो इसकी थोड़ी सी वो जो बहू का जो इज्जत है, एहतराम है, वो दूसरों के सामने तो रखना चाहिए। या कोई घर का कोई मामला ख़राब भी है तो डिस्कस ना करें, ये इनके शायद ये बिल्कुल ये कहना चाहती हैं कि बाहर वालों के लिए प्लीज़ ना, बाहर वालों को ना बताएं सासें घर में बहू क्या कर रही है या नहीं कर रही है, इससे बहुत बेइज्जती फील होती है। बिल्कुल सही। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। भाई हमारी बहन उज़्मा को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली जान शाह साहब। माशाअल्लाह। मेरी बहन उज़्मा, आपसे मेरा एक सवाल है, आप मुझे जवाब आपसे जरूर चाहिए हो। जी जी बिस्मिल्लाह। बड़ा आपकी सास आपकी बच्ची की को संभालती है या दादी अपनी पोती को संभालती है? दादी अपनी पोती को संभालती है। क्या क्या, चलो फिर ये तो बड़ा आसान बात यह है भाई फरूक। जी सर। असल में बात यह है कि जो दोहरी पॉलिसी है ना, ये दोहरी पॉलिसी हमेशा खराब करती है। ठीक है। अगर बहू घर में आई है ना, तो बहू को अपने घर के जो हालात आपके हैं, जैसे आपका रहना सहना है, उसके सामने रख दो कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे रहते हैं, हमें ये पसंद है, ये ना पसंद है, उसको अपना हिस्सा बना ले अपना। तो बात यह है कि बाज माँ ऐसा करती है कि बेटी जो किसी और के घर में होती है, अपने घर की प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करती है जो घरों में है। सही। और जो घर में बेटी आई है, बेटे की बीवी है, उससे वो हर चीज पर्दे में रखते हैं। बिल्कुल सही। तो ये हमें ये इसका सद्देबाब ऐसे होना चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि कल्चर में जो बात बुरी है उसका अजाला करना चाहिए, ना कि उसको प्रमोट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात नंदे जो हैं वो अपने घर का जो उनकी सास या ससुर या नंदू से झगड़ा होता है, वो अपने घर वापस अपने भाइयों के ले आती हैं और वो गुस्सा इधर निकालती हैं। या जो बहू आती है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि ये जब उसकी बहनें आए कि हमारे बच्चे हैं, हम इनको क्यों ऐसा करें या वैसा करें, तो वो बहनों का हक अपने हस्बैंड को अपनी बहनों का हक नहीं देने देती। तो ये कल्चर में ये खराबी है जो जड़ दर जड़ जड़ी हुई है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। और जो बात बुरी है उसका और शाह साहब इसमें आप तो शुक्रिया करके चले गए। मैं चाह रहा था कि मर्द का क्या किरदार होना चाहिए इस सारी जंग को देखते हुए, कि उस जंग में किस तरह पानी डालना चाहिए कि तेल ही डालना चाहिए, किसी फरीक का साथी बन जाना चाहिए। फारूक भाई देखिए, आज हम सासों को डिस्कस कर रहे हैं, हम अगले प्रोग्राम में बहुओं को डिस्कस करेंगे। एक ही दिन हम दो चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, एक ही म्यान में दो तलवारों वाली बात है। ये तो सही है। इवन आपको मैं बताऊं, इतनी मजे की बात, जब मौलाना अदील साहब मेरी सास और मेरी अम्मी दोनों से मिले तो बाद में उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, हम गाड़ी में जा रहे थे, उन्होंने कहा आपने तो एक ही म्यान में दो तलवारें रखी हुई हैं। बिल्कुल सही। तो ये देख लिया उन्होंने लाइन पर जब बात हुई है माशाल्लाह, तो बस ये है कि नजर बस से बचाए, और ऐसे बहुत से घराने अल्हम्दुलिल्लाह। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई मसूद से सही बात कर रहा हूँ। जी शाह साहब बहुत शुक्रिया। जी उज़्मा बेटी ने तो एक प्रोग्राम के तहत अपना यहाँ किया है, वो घर बता के आई थी शायद कि मैं ऐसे करूँगी, नहीं ऐसे बेटे नहीं है। नहीं क्या नहीं बताई, मैंने इनसे कहा अचानक। जी आप हमें तो बैठे बिठा, वो कहते हैं ना परिंदे को बैठे हुए परिंदे पर फायर नहीं करना चाहिए, आपने हमें तो पकड़ लिया, उज़्मा बेटी बच गई। सही कह रहे हैं। अर्ज यह है कि सास बहू के तल्लुकात दो न्यूक्लियर पावर का टकराव होता है, ठीक है, घर को जहन्नम बना देता है। किसी का शेर है, कुछ हश्र पर ही मौकूफ नहीं है जन्नत और दोज़ख, जिंदगी खुद भी अपने किए की सजा देती है। वाह वाह। घर में तू तकरार होगी, बच्चों की मार पीट, पुरस्कून माहौल, जो दोस्ताना माहौल होगा तो वो बच्चों की जिम्मेदारियां होंगी, वो उनकी नशोनुमा में फर्क पड़ता है। और घर की टूटकार से सास बहू का हो या कोई झगड़ा हो, इससे बहुत हालात खराब होते हैं। ठीक है। देखना यह है कि एक बार ये रवश चल निकले जी, तो शीशे में बाल आ जाता है, और कहते हैं ना कि नहीं जाता है शीशे में बाल आया हुआ, इसे फौरी तौर पर खत्म कर देना चाहिए। ऐसा अगर मौके पर हो जाए तो फिर बहुत सी बात पढ़ने से बच जाती है। मैं ऑन एयर नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी वालिदा मरहुमा से कभी
अपनी बीवी की शिकायत नहीं सुनी। माशाल्लाह। ये 6 में से चौथी बहू थी और 3 बहुओं की सास भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बहू जो है वो अक्सर कहती है उसे, वो कहती है हाँ अंकल वो प्रोफेसर है, वो इतना ऑब्जर्व नहीं करती, जाहिर है कि उसने बिला वजह तो नहीं बात करी, कहते हैं मैंने आंटी की वजह से शादी की है, ऐसे जोड़ करती है। तो सवाल ये है कि बेटी जैसे तलकार होने चाहिए बहू के साथ सास के, लेकिन वो कौन है जो ये अलग करके दे के बेटी से कैसे तलकात होते हैं और बहू से कैसे होते हैं। दरअसल जो सासें रखती हैं तलकात वो बहू और बेटी में फर्क छोड़ती ही नहीं, कोई पहचान नहीं सकता कि कौन कौन है, ता वक्त के बताया ना जाए। अल्लाह ताला सबको इसी अच्छे माहौल में रखे। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, बात यह है कि कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि माँ चाहती है कि बेटा उसकी कमाई उसके हाथ में दे और वो समझती है कि ज्यादा तौर पर जो बात बिगड़ती है वो कमाई से बिगड़ती है या बिल्कुल सही है। तो कहते हैं कि खावंद की कमाई जो है थोड़ी हो तो वो अलग होती है, बेटे की ज्यादा हो तो उसमें वो मजा नहीं होता। तो बहुत सी कहावतें हैं जो बड़ी सच्ची हैं। एक तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, तो दूसरा बहुत सी बातें बाजी जाती हैं। सही तो सही ये एक ऐसा माहौल है जो अगर कायम रखना चाहे तो कोई लड़ाइयों को तो ऐसा नहीं होता। यानी बात चाहता ही नहीं इंसान के कोई इस किस्म की बात करे कि जिस घर में कोई इख्तलाफात या दूरियां हों। अल्लाह ताला सबको महफूज मामून रखे। आपकी जो तस्वीर बोलती है जी, उसमें बादाम खाने से नहीं, किसी का मकौला है और बड़ा सही है कि मांस खा दें मांस वद्दा, साग खा दें ओजरी, दूध खा दें रूप वद्दा, तक घ्यो खा दें कोपरी। घी खाने से होता है दिमाग बना, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। आजकल बहुत डॉक्टर मना करते हैं, वो शायद बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है घी खाने की। बहुत दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह शाह साहब, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छी टिप्स शाह साहब ने भी दी, हालात का बताया। एक SMS है सैयदा नकवी साहिबा ने गुजरात इंडिया से भेजा कि वो ऑफ एयर भी कुछ बात करना चाहते हैं। तो सिस्टर ये जो लाइव कॉल नंबर लिखा हुआ है इसमें पूरा नंबर वही है, सिर्फ आखिरी 2 डिजिट 2 हिस्से आपने चेंज करने हैं। 51 की बजाय 48 मिलाना है, तो आप हमसे ऑफ एयर भी बात कर सकते हैं। तो बात जारी है सास बहू के ताल्लुकात, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या नकाइस हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि अगर छाप लग गई, आगाज़ में कुछ अनबन हो गई तो उसको बेहतर नहीं किया जा सकता, बेहतरी लाई जा सकती है। इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।